যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণা, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 135 থেকে কন্টিনিউ করব। 135 থেকে 170 পর্যন্ত করব। মাই গুডনেস, লট অফ শ্লোকাস। चैतन्य चरितामृत अंत लीला 4.135 to 170, 135 নম্বর শ্লোক। এই মতে সেবক প্রভু দুহে ঘর গেলা, এই মতে সেবক প্রভু দুহে ঘর গেলা, আর দিন জগদানন্দ সনাতনের মিলিলা। আর দিন জগনন্দ সনাতনের মিলিলা। এইভাবে সেবক এবং প্রভু দুইজন স্ব স্ব গৃহে ফিরে গেলেন। महाप्रभु गया गंभीरा में, अपना गृह में जहाँ रहते थे महाप्रभु, यानी उसको मठ बोलता है राधा कांतो मठ। गंभीरा का बाहर लिखा है, देखिएगा हम लोग जब जाएंगे। और 8 दिन जगदानंद सोना, अच्छा, और सॉरी, और सनातन गोस्वामी कहाँ गया? वहीं जहाँ थे सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे ना। তারপরের দিন জগদানন্দ পণ্ডিত সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। দুইজন বসি কৃষ্ণ কথা গোষ্ঠী কইলা, দুইজন বসি কৃষ্ণ কথা গোষ্ঠী কইলা, পণ্ডিতের সনাতন দুঃখ নিবেদিলা। পণ্ডিতের সনাতন দুঃখ নিবেদিলা। ইহা আইলাই প্রভুরে দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে, ইহা আইলাও প্রভুকে দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে। যেবা মনে তাহা প্রভু না দিলা করিতে, যেবা মনে তাহা প্রভু না দিলা করিতে। নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করেন মোরে, নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করেন মোরে। মোর কুণ্ড রসা লাগে প্রভুর শরীরে, মোর কণ্ডু রসা লাগে প্রভুর শরীরে। অপরাধ হয় মোর নাহি কনিস্তার, অপরাধ হয় মোর নাহি কনিস্তার। জগন্নাথেও না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার, জগন্নাথেও না দেখিয়ে দুঃখ অপার। শ্লোকার্থ। জগদানন্দ পণ্ডিত এবং সনাতন গোস্বামী যখন একত্রে বসে কৃষ্ণ কথা আলোচনা করছিলেন, তখন সনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতকে তার দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে আমার দুঃখ খণ্ডন করার জন্য আমি এখানে এসেছিলাম, কিন্তু আমার মনে যা ছিল তা মহাপ্রভু আমাকে করতে দিল না। আমার নিষেধ সত্ত্বেও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমাকে আলিঙ্গন করেন এবং তার ফলে আমার কণ্ডুগসা তার গায়ে লাগে। এইভাবে আমি তার শ্রী পাদ পদ্মে অপরাধ করছি, যার ফলে আমার নিস্তার হবে না। সেই সঙ্গে আমি শ্রী জগন্নাথকে দর্শন করতে পারি না এবং তার ফলে আমি গভীর দুঃখ অনুভব করি। সেই সঙ্গে আমি জগন্নাথকে দর্শন করতে পারি না, সেই সঙ্গে मे बी बिकॉज ऑफ हिज स्किन डिजीज, इसलिए मंदिर में भी नहीं जाता है, এবং তার ফলে আমি গভীর দুঃখ অনুভব করি। सबको समझ में आया ना? ওই দুঃখ তো ছিল প্রভু যে ওনার গায়ে লাগলো, তারপরে আরেকটা দুঃখ হলো যে আমি জগন্নাথ দেবকে ডাইরেক্ট দর্শনও করতে পারি না। प्रभु दर्शन क्यों करने नहीं पाए, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। एक्चुअली वो अपने आप को समझते थे कि वो नीचो कुल उद्भूत हो, क्योंकि मुसलमान सरकार के अंडर में नौकरी किया है, इसीलिए जाना उनको उचित नहीं लगता जगन्नाथ मंदिर के अंदर में। प्लस उनका शरीर में ये जो हुआ था, इसके कारण भी पांडलों का कहीं शरीर में सेवक, जगन्नाथ का सेवक का शरीर में कभी स्पर्श ना हो जाए। হিত নিমিত্ত আইলাই আমি হইল বিপরীতে, হিত নিমিত্ত আইলাই আমি হইল বিপরীতে। কি করিলে হিত না হয়, কি করিলে হিত হয় নারী নির্ধারিতে। কি করিলে হিত হয় নারী নির্ধারিতে। আমার মঙ্গল সাধনের জন্য আমি এখানে এসেছিলাম, বৃন্দাবন সামনে আপনার মঙ্গল সাধনের জন্য এসেছিলাম, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে তার ফল হচ্ছে বিপরীত, উল্টা হয়। কি করলে যে আমার হিত হয় তা আমি निर्धारण করতে পারছি না, यहाँ तो विपरीत হচ্ছে, उल्टा पाप हो रहा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो रहा है। ठीक है मुन्ना प्रभु?
পণ্ডিত কহে তোমার বাস যোগ্য বৃন্দাবন। सुनना करो कुमार पंडित को है प्रभु जी তোমার বাস যোগ্য বৃন্দাবন। तुम्हार वास योग्य वृंदावन রথযাত্রা দেখি তাহা করহ গমন। रथ यात्रा देखिए तो करो गमन। तुम्हारा एक्चुअली वृंदावन में रहना चाहिए ऐसे। रथ यात्रा रथ देखकर तुम चले जाओ वापस वृंदावन। জগদানন্দ পণ্ডিত বললেন তোমার বসবাসের সবচাইতে যোগ্য স্থান হচ্ছে বৃন্দাবন। রথযাত্রা দর্শন করে তুমি সেখানে ফিরে যাও। প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে তোমা দুই ভাই। सुषमा अग्रवाल माता जी है। थैंक यू गुरु माता। प्रभु जी बुक नहीं खोले अभी हम। প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে তোমা দুই ভাই। प्रभु क्या हुई सही तुम्हार दुई भाई বৃন্দাবনে বৈশে তাহা সর্বসুখ পাই। वृंदावने वैसे ताही सब सुख पाई। ইয়া। মহাপ্রভু ইতিমধ্যে তোমাদের দুই ভাইকে নির্দেশ দিয়েছেন বৃন্দাবনে বাস করতে, সেখানে তুমি সর্বসুখ লাভ করবে। एक्चुअली महाप्रभु सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को तो बोल दिया इंस्ट्रक्शन, रूप गोस्वामी चला गया वृंदावन। सनातन गोस्वामी ने भी बोला था ना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा शरीर से ये सब कार्य संपादन हो, बोला था ना महाप्रभु। तो इसीलिए महाप्रभु ये जगदानंद पर बोला महाप्रभु तो चाहते हैं कि आप लोग दोनों वृंदावन में रहो, ये सब सेवा करो, तो तुम चले जाओ वहां। महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाएगा ये सुनकर बाद में। যে কার্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ। যে কাজে আইলা প্রভু দেখিলা চরণ। রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন। রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন। তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, কেননা তুমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী পাদপদ্ম দর্শন করেছো। তাই শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা মহোৎসব দর্শন করার পর তুমি বৃন্দাবনে ফিরে যাও। ঠিক আছে। সনাতন কহে ভালো কইলা উপদেশ। সনাতন কহে ভালো কইলা উপদেশ। তাহা যাব সেই মোর প্রভু দত্ত দেশ। তাহা যাব সেই মোর প্রভু দত্ত দেশ। লোকার্থ। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তখন বললেন, তুমি আমাকে খুব ভালো উপদেশ দিয়েছো, আমি সেখানেই ফিরে যাব, কেননা সেটি আমার প্রভু দত্ত দেশ। প্রভু দত্ত দেশ हरे कृष्ण दिया गया। हाँ माता जी, हाँ देंगे अभी। प्रभु जी यहाँ पे आप बता रहे हैं कि सनातन एंड रूप को उन्होंने कहा था वृंदावन, बट व्हाई इज ही देयर नाउ विद महाप्रभु इन पुरी? बोला था तुम अभी भेजा नहीं, बोला था आई वांट यू टू डू दिस जॉब्स इन वृंदावन, एस्केवेट वृंदावन एंड राइट दिस बुक्स, बट अभी तक भेजा नहीं। ओके रूप गोस्वामी को तो भेज दिया। Yes, প্রভু দত্ত দেশ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তির পন্থা এক জায়গায় বসে থাকার শিক্ষা দেয় না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তির পন্থা এক জায়গায় বসে থাকার শিক্ষা দেয় না, পক্ষান্তরে সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবত ভক্তি প্রচার করার শিক্ষা দেয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন সেখানকার লুপ্ত তীর্থগুলি উদ্ধার করে ভগবত ভক্তির পন্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাই সনাতন গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামীকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে থাকবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তেমনই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অনুগামীদের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে প্রচার করা। তাদের কর্তব্য পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত তাদের প্রভু দত্ত দেশ বলে গ্রহণ করে সেই সমস্ত স্থানে বাস করে ভগবত ভক্তি প্রচার করা। গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, তাই যিনি তার গুরুদেবের আদেশ পালন করেন বুঝতে হবে যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালন করছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীর সর্বত্র ভগবত ভক্তির পন্থা প্রচার করতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র হইবে প্রচার মোর নাম।
তাই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গিয়ে গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবত ভক্তির পন্থা প্রচার করা। তাহলেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হবেন। ओके, सो सार यही है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब इंस्ट्रक्शन मिले गुरुदेव से तभी जाना चाहिए वृंदावन में। अगर वहां प्रचार करने बोले तो वहां जाना चाहिए, जहां गुरुदेव निर्देश करेगा वहां जाकर प्रचार करना चाहिए। और वही स्थान प्रभु दत्त देश है। प्रभु दत्त मीन्स इट्स लाइक सैंक्शनड बाय प्रभु, प्रभु दत्त, यू नो, ओके, ये स्थान जा सकते हैं। ऐसे ही अपने मन से नहीं जाना चाहिए वृंदावन या कोई भी जगह, अपने मन की ख्याल खुशी से नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव को मालूम है कि शिष्य का क्या परिस्थिति है, क्या उनका कॉन्शियसनेस लेवल है, उस हिसाब से गुरु भेजेगा। किसी का कोई प्रश्न है? 145 नंबर श्लोक। এত বলি দুহে নিজ কার্যে উঠি গেল, এত বলি দুই নিজ কার্য উঠি গেল, আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা, আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা। হরিদাস কইলা প্রভুর চরণ বন্দন, হরিদাস কইলা প্রভু চরণ বন্দন, হরিদাসে কইলা প্রভু প্রেম আলিঙ্গন, হরিদাস কইলা প্রভু প্রেম আলিঙ্গন। দূর হইতে দণ্ড প্রণাম করে সনাতন, দূর হইতে দণ্ড প্রণাম করে সনাতন, প্রভু বলায় বারবার করিতে আলিঙ্গন। প্রভু বলায় বারবার করিতে আলিঙ্গন। এইভাবে আলোচনা করে সনাতন গোস্বামী এবং যদানন্দ পণ্ডিত তাদের নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করতে চলে গেলেন। তারপরের দিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুর এবং সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। হরিদাস ঠাকুর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী পাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করে তার চরণ কমল বন্দনা করলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অপ্রাকৃত প্রেমে আবিষ্ট হয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন। দূর থেকে সনাতন গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করলেন এবং মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করার জন্য বারবার ডাকতে লাগলেন, ये संगनी श्याम प्रिया माता जी। इस प्रभु तो जो निज काम है कौन सा कार्य करते थे? तो कोई कार्य नहीं कर रहे थे ना अभी सनातन गोस्वामी। देखिए होगा जगदानंद पंडित का कुछ होगा और सनातन गोस्वामी का निजो मीन्स पर्सनल ड्यूटीज, जैसे टेकिंग अ बाथ, गायत्री करना, प्रसाद लेना, जप करना, ग्रंथ अध्ययन करना। দূর থেকে সনাতন গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করলেন। দূর থেকে কেন दिलीप प्रभु, क्यों दूर से किया? उजली तो भगवान के शरीर में ना কণ্ড রসে এবং মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করার জন্য বারবার ডাকতে লাগলেন। অপরাধ ভয়ে তেহ মিলিতে না আইলো, अपराध में भयते मिलित ना आइलो, মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাই গেল। महाप्रभु মিলিবারে मिलिबारे সেই ঠাই গেল। এই ঠাই গেল। অপরাধের ভয়ে সনাতন গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গেলেন না। তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করার জন্য তার কাছে গেলেন। হরে কৃষ্ণ। সনাতন ভাগী পাছে করেন গমন, সনাতন ভাগী পাছে করন গমন, বলাৎকারে ধরি প্রভু কইলা আলিঙ্গন। বলৎকারে ধরি প্রভু কইলো আলিঙ্গন। বলাৎকারে মানে বলপূর্বক প্রভু উনকো পকড়া और আলিঙ্গন किया। তখন সনাতন গোস্বামী সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলপূর্বক তাকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। দুইজন লইয়া প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে, দুইজন লইয়া প্রভু বসিলে পিণ্ডাতে, নির্বিন্ন সনাতন লাগিলা কহিতে, নির্বিন্ন সনাতন লাগিলা কহিতে, হিত লাগি আইনু মুই হইল বিপরীত, চিত্ত লাগি আইন মুই হেলো সেবা যোগ্য নাহি অপরাধ করো নীতি নীতি। सेवा जोग्य नाही अपराध करो नीति नीति। वही बात महाप्रभु के बोलने लग गया, किस लिए आया था और उल्टा हो गया। और देखिए एक चीज लिखा है, दुईजन लोहिया प्रभु बोशिला पिंडिते। कहाँ है महाप्रभु अभी? कोई बता सकता है कौन कहाँ गए अभी महाप्रभु? कौन से स्थान में है? हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे। हाँ सिद्ध बकुल। अभी ये मेरा इंटरप्रिटेशन है।
आप लोग को याद है सिद्ध गोकुल के पीछे जहाँ एक प्लेटफॉर्म था, पिंडिते लिखा हुआ ना, पिंडिते बार बार आया है, जहाँ हम लोग का ड्रामा हुआ था, याद है आप लोग? होगा तो ही बोलेंगे। हरे कृष्णा, याद है, याद है, याद है, याद है, पीछे ड्रामा। बहुत अच्छा ड्रामा किए थे, बहुत हाँ याद है, अब तो भूल रहे हैं। हाँ, एक्टिंग मस्त। so विवाह जस्ट हरिदास ठाकुर के वही सिद्ध गोकुल के पीछे पीछे जस्ट बैक साइड में ड्रामा हुआ था। हो सकता है कि उसी स्थान पे। फिर से जाना होगा। हाँ, हमारा तो खूब बहुत मन कर रहा है। अभी 2-4 मिनट लिए क्या, अभी बताइए कब जाना है? अगर आप लोग का अगर सितंबर में जाने का इच्छा है तो जनवरी बोलिए। प्रभु, जनवरी में। जनवरी तक? जनवरी बहुत दूर है। यही ठीक रहेगा प्रभु, हम भी रहेंगे सितंबर में ठीक है ना, जनवरी में बोल रही हाँ, है। जनवरी करिए प्रभु। वो छुट्टी के समय। अच्छा, छुट्टी के समय ठीक है। तब तक ये खत्म हो जाएगा चैतन्य चरितामृत, तखन चैतन्य मंगल चल पे बाल्य लीला पूरी में ठीक नहीं 1 से लगेगा। 14 के अंदर करिए ना, बात नहीं। 1 से 14 के अंदर जनवरी का। हाँ ठीक है, 1 से 14 माय पॉइंट इज तब तक ये अंतलीला खत्म हो जाएगा। अंतलीला देखिए ना कितना हो ही गया, अभी 4th चैप्टर में आ गया। हमको तो लग रहा है ये पूजा का आगे खत्म हो जाएगा। तब तक आप जब हम लोग जब जनवरी में जाएंगे फिर बाल्य लीला जगन्नाथपुरी में, चैतन्य मंगल जगन्नाथपुरी में ठीक मिलेगा। 2 दिन मायापुर में रहेगी। और जा सकते हैं। अगर किसी का दिक्कत है तो जनवरी में भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सोच रहे थे पूरी का प्लान अगर करते हैं तो फिर ये एक चक्र का धाम प्लान थोड़ा पोस्टपोन करके पूरी कर लेते हैं सितंबर में। हाँ प्रभु जी। और एक बात बता रहा हूँ, ये बारिश के समय पूरी का समुद्र में समुद्र स्नान अभी इंद्र तृप्ति नहीं है, स्पिरिचुअल इंद्र तृप्ति है। समुद्र का स्नान बारिश के समय उसका और भी बहुत महत्व रहता है। हरे कृष्ण। हालांकि आप लोग को पैड ग्लव्स पहन के जाना पड़ेगा क्योंकि इंजरी हो सकता है। तो देखिए अगर आप लोग को ठीक लगे तो सितंबर के कोई छुट्टी है, कोई हॉलिडेज है कुछ सितंबर में, कुछ नेशनल हॉलिडे कुछ आता है क्या? प्रभु जी अभी लगातार शायद 4 दिन कभी छुट्टी है, कब ये नहीं 15 अगस्त को, सब 15 अगस्त में तो पूरी एकदम अगस्त टाइम पे है शायद छुट्टी। 15 अगस्त तो टिकट भी नहीं मिलेगा अभी कुछ। 15 अगस्त डेंजरस हो जाएगा, पूरी में बहुत भीड़ होगा। एक चक्र धाम चलिए 15 तक। एक चक्र धाम तो कभी भी जा सकते हैं, सामने है। 15 अगस्त को प्रभु वहाँ पे उस समय वहाँ पे रहने का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा 15 अगस्त में। हाँ, एक चक्र धाम एक चक्र धाम, हाँ 15 अगस्त में एक चक्र धाम। 15 अगस्त आज 6 अगस्त है, इतना जल्दी आयोजन कैसे करेंगे? रूम बुकिंग ऐसे भी 10,000 बार मैसेज देने के बाद लोग रजिस्ट्रेशन करता है ये सामान्य जगह में, और एक चक्र धाम में क्या हो जाएगा सोचिए। अच्छा, क्या ऐसे 15 अगस्त छुट्टी है? वो क्या है, कहाँ है प्रभु एक चक्र धाम? ये नित्यानंद प्रभु का बर्थ प्लेस रामपुर हाट, तारापीठ के पास। सैटरडे संडे पड़ रहा है और ट्यूसडे पड़ रहा है 15 अगस्त। बीच में मंडे क्या बस है? खाली मंडे को एक दिन है, फिर 4 दिन का छुट्टी। 4 दिन का छुट्टी है। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। लेकिन 4 दिन एक चक्र धाम में ज्यादा नहीं हो जाएगा? प्रभु जी वहाँ के उसके पास में एक तो है ना, वो आप बोल रहे थे वहाँ का आप लोग सब गए थे, वो हमको नाम याद नहीं आ रहा। वहाँ पे गंगा बहुत शीतल है वहाँ पे। एक प्रभु जी बोले वहां से आगे महाप्रभु नहीं जा पाएंगे। जब महाप्रभु निकले थे वृंदावन जाने के लिए तो बोले थे कि उससे आगे वहां तक नहीं जा पाएंगे। हाँ कनाई नागशाला, वहाँ तो उसके पास ही है ना प्रभु जी, एक चक्र धाम के पास है ना कनाई नागशाला। ना वहाँ नहीं है। नहीं आप सही बोला। एक्चुअली काली नाटशाला से आ सकता है गंगा से एक चक्र धाम। हाँ तो प्रभु वो शक्तिवाद प्रभु आए थे वैसे। हाँ लेकिन शक्तिवाद कब प्रभु पहुंचेंगे काली नाटशाला से गंगा तट से अगर आएंगे तो कब पहुंचेंगे भगवान जाने। ठीक है, उनसे पूछना पड़ेगा क्या है क्या शक्तिमान अद्वैत प्रभु है अभी। एनीवेज ठीक है, देखते हैं एक चक्र धाम कर सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट नोटिस हो जाएगा। आप लोग कौन कौन जाना चाहते हैं ये छुट्टियों में? ये 15 अगस्त के छुट्टियों में एक चक्र धाम, गूगल हाथ उठाइए। प्रभु भी जाए, प्रभु भी बोल रहे थे बंसल प्रभु भी जाएंगे 15 अगस्त को कहीं। अच्छा, थोड़ा गूगल हाथ उठाइए, कौन कौन देखते हैं? 1 2 3 4 5। ज्यादा लोग नहीं जाना चाह रहे। हरे कृष्णा। ओके, अच्छा हाथ उतार दीजिए, हाथ उतार दीजिए, हाथ उतार दीजिए, हाथ उतार दीजिए दिलीप प्रभु।
अभी आप लोग सितंबर में कौन जगन्नाथपुरी दर्शन करना चाहते हैं? प्रभु छुट्टी रहेगा तभी जा पाएंगे। हाँ, वही फ्राइडे सैटरडे संडे जैसे होता है। और माने बहुत आनंद आएगा, एक एक स्थान जाएंगे, दर्शन करेंगे, एक एक जो जो हो रहा है उधर चैतन्य चरितमृत पाठ भी हो जाएगा, उधर से ही क्लास होगा ऑनलाइन, और कुछ ग्रंथ भी उधर खत्म कर लेंगे और एक एक स्थान दर्शन करेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर, राधाकांत मठ, टोटा गोपीनाथ, पुरी में स्नान के लिए होगा, फिर नील माधव दर्शन भी कर लेंगे। और डेली प्रसाद कहाँ लेंगे? आनंद बाजार में, ठीक है। और जब करेंगे समुद्र के तट पे ब्रह्म मुहूर्त में। अरे बहुत देखिए आस्ते आस्ते हाथ भर रहा है, ऐसे करके मार्केटिंग करना चाहिए ना, तब तो आएगा लोग। ओके, माय गुडनेस। ओ रुकिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, लेट्स सी, बहुत लोग हाथ उठाया, ठीक है, देखते हैं। फिर ये सितंबर महीना में हम लोग जगन्नाथपुरी धाम जा सकते हैं। ओके, और वेदर तो फर्स्ट क्लास होगा सितंबर में। एक्चुअली ठंड के समय पुरी में स्नान करने में ठंड लगेगा ना, गंगा स्नान, आई मीन समुद्र स्नान में ठंड लगेगा जनवरी में। ओके, लेट्स सी, हम लोग टिकट्स अवेलेबिलिटी देख के बता देंगे। हम लोग यूजुअली वहीं रहते हैं जहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म स्थान है, श्री चैतन्य गौड़ी मठ, वहीं हम लोग रूम बुकिंग करते हैं। और कोई रात का कोई ट्रेन दुरंतो या जो है वो इसी से जाएंगे, मॉर्निंग में पहुंचेंगे। और फिर पहला दिन तो सब लोकल प्लेसेस दर्शन करेंगे, और जैसे लोकल साइट सीइंग पहला दिन नहीं, पहला दिन दूर का कर लेते हैं, अलालनाथ, अलवरनाथ, और इस्कॉन भार्गव, इस्कॉन रघुराजपुर जो हेरिटेज विलेज है। आप लोग गए हैं कोई? हम लोग के साथ 2013 में 2011 में ना, महामंजरी माता जी है। 13 में गए थे प्रभु जी, आप लोग 13 में गए थे, 13 दिसंबर में गए थे आप लोग। हाँ, मैं नहीं गई थी उस वक्त, आप लोग गए थे। मना गौरंगी माता जी शायद थी। हाँ, वो गई थी, हम तभी ज्वाइन हुए थे, इसलिए नए नहीं गए थे। तो उस समय वो रघुराजपुर हेरिटेज विलेज कोई गए इधर आप में से? इस्कॉन चंदनपुर किसी को मालूम भी नहीं है। वो वही स्थान है भारत नदी में जहाँ नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का दंड तोड़ के फेंक दिया था पानी में। हाँ, तो वो स्थान बहुत लोगों को मालूम नहीं। वहाँ इस्कॉन भी हुआ है छोटा, बहुत सुंदर भार्गव नदी के तट पर इस्कॉन रघुराजपुर, तो वो दर्शन करेंगे और पहला दिन ये कर लेंगे। फिर उसी के साथ साथ ये साक्षी गोपाल, जो ज्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर दूर है। साक्षी गोपाल स्टोरी याद है आप लोग को? वो ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण, वो तो वो भी दर्शन कर लेंगे। और फिर आकर समुद्र स्नान कर क्योंकि दोपहर को थोड़ा लेट प्रसाद मिलता है आनंद बाजार में, 3:30 बजे आता है ना, गरम जगन्नाथ को भोग लग के, मालूम है ना, दोपहर का प्रसाद 3:30 बजे आता है। तो फिर वहां स्नान करने के बाद बहुत भूख लगता है समुद्र में स्नान करने के बाद, फिर वहां जाकर प्रसाद लेंगे और फिर शाम को शॉपिंग पहले दिन ये सब हो जाएगा। सेकेंड प्रभु माधव जाने के रास्ते में तो साक्षी गोपाल पड़ेंगे। साक्षी गोपाल तो बहुत नजदीक है, नील माधव दूर है। नहीं, दोनों अपोजिट है माता जी, दोनों अपोजिट है, साक्षी गोपाल और वो दोनों अपोजिट। हम लोग तो जाते हैं तो आगे साक्षी गोपाल दर्शन करके तब नील माधव निकलते। साक्षी गोपाल एक्चुअली पूरी घुसने के आगे ही आता है, स्टेशन भी आता है ना, आप ट्रेन में जब जाते हैं स्टेशन भी आता है साक्षी गोपाल स्टेशन। देखते हैं प्रभु जी, देखते हैं जाता है प्रभु जी, आगे साक्षी गोपाल दर्शन कराता है, फिर नील माधव। हरे कृष्णा प्रभु जी, अरे म्यूट कीजिए पंकज प्रभु। फिर ये पहला दिन हो जाएगा और फिर सेकंड डे नाम अभी भेज देते हैं माता जी को। ओके, सेकंड डे लोकल दर्शन करेंगे। सेकंड डे बहुत सुंदर होगा, क्योंकि लोकल दर्शन करना है तो सुबह 4:30 बजे इस्कॉन में हम लोग मंगल आरती करेंगे। सैटरडे, सेकंड डे माने शनिवार का बात कर रहा हूँ। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करने के बाद उस स्थान में आसपास जो मंदिर है, जैसे हरिदास ठाकुर का समाधि, फिर सिद्ध बकुल, फिर टोटा गोपीनाथ, फिर मानसी गंगा, फिर वहाँ राधाकांत मठ, गंभीरा, हाँ, और काशी मिश्र मठ, फिर वहाँ परमानंद कुओं, ये सब बहुत स्थान है। सब जो कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उन लोग का सब लीला स्थली है। ये सब हम लोग दर्शन करेंगे सैटरडे को।
और सैटरडे को दर्शन करके वो सारा दिन चल जाएगा उसमें। फिर मॉर्निंग का प्रसाद, एक तो हम लोग उधर एक चतक पर्वत है, गौड़िया मठ के ऊपर चतक पर्वत है, जो पर्वत को देखकर महाप्रभु को गोवर्धन स्मरण आता था और महाप्रभु भागकर चतक पर्वत के ऊपर चले जाते थे। ये जस्ट टोटा गोपीनाथ मंदिर के सामने जो गौड़िया मठ है देखिए प्रभु जी, उसी के अंदर में है। हाँ, तो वो दर्शन कर लेंगे। प्रभु प्ले ग्राउंड हो गया, वो चटक पर्वत प्ले ग्राउंड बन गया। क्रिकेट मैच पिछला बार तो दिखाया था प्रभु, सब क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, जो भी है प्लेग्राउंड बन गया, क्या करें। तो जो भी है, तो वो करके फिर समुद्र स्नान करके फिर आनंद बाजार में प्रसाद लेके और हम लोग को गाइड करेंगे जगन मित्र जगन्नाथ प्रभु, जगबंधु प्रभु, मालूम है आप लोग को, उनका एकदम लोकल है। और जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जो यूको बैंक है वही नौकरी करता है, तो अंदर अंदर हम लोग को अच्छा से जगन्नाथ दर्शन कराएंगे। सेकेंड डे एकदम डिटेल जगन्नाथ मंदिर दर्शन विद जगन मित्र जगन्नाथ प्रभु, क्योंकि सैटरडे उनका भी छुट्टी वुट्टी हो सकता है। ठीक है, वो करेंगे और डिटेल में उधर फिर शाम को हम लोग चैतन्य चरितामृत पाठ करेंगे एकदम। और थर्ड डे भी चैतन्य चरितामृत पाठ समुद्र में। थर्ड डे विल कीप फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर जगन्नाथपुरी समुद्र। ओके, और समुद्र में हम लोग बीच में कीर्तन करेंगे, डांसिंग कीर्तन, पाठ, जपा। एक दिन जपा समुद्र में करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर हो सके तो संडे को हम लोग कांटीलो निकल जाएंगे। कांटीलो नीलमाधव, कांटीलो नीलमाधव बहुत सुंदर जगह है। महानदी के तट पर नीलाचल पर्वत के ऊपर विष्णु मंदिर है, चतुर्भुज रूप में नीलमाधव विग्रह, वो दर्शन करेंगे और करके फिर शाम को ट्रेन से वापस आ जाएंगे। नीलमाधव प्रसाद, हाँ, और नीलमाधव में प्रसाद बहुत अच्छा होता है। उधर ही प्रसाद ले लेंगे, ऊपर पहाड़ के ऊपर उधर जो प्रसाद मिलता है। और नीलमाधव में आप लोग कोई महानदी में स्नान किया? इतना सुंदर महानदी है उधर, एकदम दृश्य भी कितना सुंदर है। ऊपर से प्लेटफॉर्म से आप लोग कौन कौन नीलमाधव गए हैं? कैंटीलो नीलमाधव, गायत्री राधिका माता जी गए हैं, एक ही जन? अच्छा, मम्मी गए हैं? मम्मी तो खुद गए। सुचारू गोपी माता जी गए। ओके, सो ऊपर से नीलमाधव, ऊपर से आप लोग फिर प्रभु जी नीलमाधव हम लोग उधर महानदी में स्नान किया आप लोग? हाँ, एक बार किए हैं प्रभु जी, एक बार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत स्वच्छ, बहुत सुंदर, इतना सुंदर। तो वो स्नान करेंगे, स्नान कर फिर शाम को हम लोग रात को ट्रेन पकड़ के वापस आ जाएंगे। और एक जगह बता रहा हूँ, मैंने जिनको गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करने का आनंद वो अच्छा लगता है जिनको, तो ये जो भार्गव नदी है, जहाँ नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का दंड तोड़कर फेंक दिया था, जहाँ इस्कॉन मंदिर हुआ है, चंदनपुर, वो एक एक्चुअली हेरिटेज विलेज है। आई डोंट नो आप लोगों को याद है या नहीं, हेरिटेज विलेज, वो पूरा गांव। प्रभु उस समय तो नदी में पानी नहीं था, अपने लोग गए थे तब, क्या तो बोल रहे नौका डग 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 करते करते अपने लोग पार किए थे। नहीं, भार्गव नदी को स्विमिंग करके उस पार गया था जगबंधु प्रभु, मैं शायद रस सिंधु गौर प्रभु ने, आई डोंट नो, सब हम लोग गया था। उस पार में महाराज प्रताप रुद्र का राधा गोपीनाथ विग्रह है, याद है किसी को? याद नहीं है किसी को? हाँ प्रभु, हमको याद है, छोटा सा टेम्पल था वो। हाँ, महाराज प्रताप रुद्र का राधा गोपीनाथ तो विग्रह। भार्गव नदी में पानी नहीं था प्रभु, वहाँ पे 2-3 नौका लगी हुई थी, डग 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 करते हुए हम लोग डरते डरते पार किए थे। ओके, हमको अच्छे से याद है, और कितने लोग गए भी नहीं थे डर के मारे। ओके, हाँ, जो भी हो, एक्चुअली हम लोग बहुत बार गए हैं उधर, तो इसीलिए याद नहीं होता। तो ये सब करेंगे, तो बहुत एक्टिविटीज, फुल ऑफ एक्टिविटीज। ये पूरी ट्रिप जो होता है वो पूरा एक्टिविटीज भरा रहता है, एक्टिविटीज से। तो वहाँ का गोविंदास का प्रसाद जरूर याद है। प्रभु नीलमाधव का कितना सीढ़ीज है चढ़ना? है, थोड़ा बहुत है। आई थिंक उधर वो पालकी होता है, पालकी जैसा होता है, वो जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते उन लोग के लिए वो चेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा माता जी। पूरा पूरी का भ्रमण कर लिए प्रभु जी हम लोग, आप इतना ही करवा दिए हम लोग बैठे बैठे ही ऑनलाइन में। सबसे अच्छा होगा, मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छा होगा जगन्नाथ मंदिर के अंदर,
इतना मंदिर है और एक एक मंदिर का एकदम अच्छा से दर्शन कराएगा जगन मित्र जगन्नाथ को। आई डोंट नो आप लोग में से अभी कौन सितंबर में शायद टिकट नहीं मिलेगा। मिल जाएगा। मानसी परिक्रमा हो गया आराम से। मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोग को, डेली का डेली टिकट मिलता है। वो जो नया ट्रेन निकला है ना वंदे भारत 6 बजे जो सुबह छूटता है, मैं कितना बार देखा सुबह अभी भी टिकट अवेलेबल है, मतलब सेम डे में। अभी ट्रेन का बहुत ऑप्शंस बढ़ गया है। और एक क्या एडवांटेज हुआ है, कुछ कुछ ट्रेन जो पूरी का ट्रेन जो सियालदा या हावड़ा से छूटता था उन लोग को शालीमार स्टेशन भेज दिया गया है, मालूम है ना? शालीमार से छूटता है, तो उससे क्या हुआ, मैक्सिमम लोग उतना दूर जाता नहीं है। शालीमार वाला ट्रेन फाका रहता है, टिकट्स मिलता है। तो और एक भी ट्रेन है जो चितपुर से छूटता है कोलकाता स्टेशन से। तो अभी ऑप्शंस बहुत है, ट्रेन बहुत बढ़ा गया है। यही है बात। तो लेट्स सी, हम एक बार बैठ के भक्त लोग से आलोचना करके सितंबर का देखता हूँ, कुछ अगर निकले तो कंफर्म करता हूँ जगन्नाथपुरी ट्रिप का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे सनातन गोस्वामी के बारे में बार बार बताया जा रहा है कि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो हो नहीं रहा, और तो बेसिकली किस काम के लिए वो आए थे? आपको क्या लगता है? वही जो एक्सकवेशंस और वाह 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 वाह, उसी लिए पुरी आया था, एक्सकवेशन करने के लिए। प्रभु जी नहीं, तभी तो पूछ रही हूँ। वो महाप्रभु ने वृंदावन के लिए कहा था शायद। हाँ, आप क्या सनातन गोस्वामी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई ऑफिसर है क्या, एक्सकवेट करने आया था? तो महाप्रभु ने उनको आदेश दिया भगवान कृष्ण का लीला स्थली ढूंढ के निकालने का, वो वृंदावन में वो आया था। एक्चुअली 2 चीज के लिए, एक तो जगन्नाथ दर्शन के लिए, याद है आप लोग को, एक महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, और तीसरा अपना शरीर त्याग करने के लिए। उन्होंने यही सिद्धांत लिया था ना शशि माता जी, कि जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ को दर्शन करूंगा, महाप्रभु को दर्शन करूंगा, और रथ का चक्का में अपने प्राण त्याग करूंगा। ये था ना? लेकिन ओके, और 1-2 श्लोक करके कहाँ है हम लोग? 150 हो गया प्रभु। 152 होगा अभी। তাদের দুজনকে নিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এক পবিত্র বেদির উপর বসলেন। তখন বিস্ময় বিরক্ত সনাতন গোস্বামী বলতে লাগলেন, আমি আমার মঙ্গল সাধন করার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে তার ফল হচ্ছে বিপরীত। আমি সেবা করার যোগ্য নই, আমি কেবল দিনের পর দিন অপরাধ করে যাচ্ছি। হরে কৃষ্ণ। और 1-2 श्लोक कर लेते हैं। সহজে নিচ জাতি মুই দুষ্ট পাপাশয়, সহজে নিচ জাতি মুই দুষ্ট পাপাশয়, নিচে জাতি মুই দুষ্ট পাপাশয়, মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়। মোরে তুমি ছুঁড়লে মোর অপরাধ হয়। আমি স্বভাবত নিচ কুলোদ্ভূত, আমার প্রকৃতি অত্যন্ত দুষ্ট, এবং আমি পাপাশয়। তাই আপনি যদি আমাকে স্পর্শ করেন তাহলে আমার অপরাধ হয়। তাহাতে আমার অঙ্গে কুণ্ডরসা রক্ত চলে, তাহাতে আমার অঙ্গে কুণ্ডরসা রক্ত চলে। তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ তুমি বলে, তোমার অঙ্গে লাগে তুমি তবু স্পর্শ তুমি বলে। তার উপর আমার দেহের কুণ্ড রস থেকে রক্ত ক্ষরিত হয়, তা আপনার শ্রী অঙ্গে লাগে, কিন্তু তবুও আপনি আমাকে বলপূর্বক স্পর্শ করেন। বিভৎস সস্মিতে না করো ঘৃণা লেশে, বিভৎস স্পর্শিতে না করো ঘৃণা লেশে, না করে ঘৃণা লেশে, এই অপরাধে মোর হবে সর্বনাশে। এই অপরাধে মোর হবে সর্বনাশে। আমার এই বিভৎস শরীর স্পর্শ করতে আপনার ঘৃণার লেশ মাত্র অনুভব করেন না, কিন্তু এই অপরাধের ফলে আমার সর্ববিধ মঙ্গল নষ্ট হবে। তাই তাতে ইহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ, তাতে ইহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ। দেহ রথ দেখি যাও বৃন্দাবন, আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাও বৃন্দাবন। জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল,
জগনানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল, বৃন্দাবন যাইতে দেহ উপদেশ দিল। বৃন্দাবন যাইতে দেহ উপদেশ দিল। তাই আমি বুঝতে পারছি যে এখানে থাকলে আমার কল্যাণ হবে না, তাই আপনি আমাকে রথযাত্রার পর বৃন্দাবনে ফিরে যেতে অনুমতি দিন। এই বিষয়ে আমি জগদানন্দ পণ্ডিতের সাথেও আলোচনা করেছি এবং তিনিও আমাকে বৃন্দাবনে ফিরে যেতে উপদেশ দিয়েছেন। এই রে, আমি দেখি এত শুনি মহাপ্রভু সরস অন্তরে। पंकज प्रभु है। এত শুনি মহাপ্রভু সরস অন্তরে, জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হইয়া করে তিরস্কারে। জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হইয়া করে তিরস্কারে। কালিকার বটুয়া জগা ওইছে গর্বী হইল। কলিকার বটুয়া জগা এছে গর্বী হইল। তোমা সবার হে উপদেশ করিতে লাগিল। তোমা সবার উপদেশ করিতে লাগিল। ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরু তুল্য। ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরু তুল্য। তোমারে উপদেশ না জানে আপন মূল্য। তোমারে উপদেশে না জানে আপন মূল্য। সে কথা শুনে রুষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে তিরস্কার করতে লাগলেন। কালকের বালক জগদানন্দ পণ্ডিতের এমনই গর্ব হয়েছে যে সে তোমার মতো ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে শুরু করেছে। আচার ব্যবহার এবং পারমার্থিক উন্নতি অনুসারে তুমি তার গুরু তুল্য, অথচ সে তোমাকে উপদেশ দেয়। সে তার নিজের মূল্য জানে না, doesn't know his position, आपको एडवाइस कर रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जगदानंद पंडित को तो महाप्रभु ने भेज दिया था ना एक बार पहले। नहीं, वो जो जिन्होंने वो दूसरा था, दामोदर पंडित था, जो वो बच्चा को बोला था ना, बच्चा महाप्रभु बच्चे के साथ इतना हंसी मजाक मत करना, वो वाला ना। दामोदर पंडित था, जगदानंद पंडित था वो जो तेल लाया था। सची माता जी ने तेल भेजा था वो। हाँ, वो तो क्रोध करके उन्होंने फोड़ दिया था वो। विशाखा ललिता देवी का अवतार है ये जगदानंद पंडित। ओके, सॉरी, सत्यभामा का अवतार है, सत्यभामा का। তুমি আমার উপদেষ্টা, কেননা তুমি তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা। আমার উপদেশ, আচ্ছা यही तक लगता है बस, ठीक है, बाद में कल देखेंगे। পারমার্থিক উপদেশ তার নিজের মূল্য জানে না। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। कहाँ तक रवि प्रभु? हाँ तो 170 तक, लेकिन 160 वाला कर 160 होगा नहीं। 160 वाला कर 160 वाला कर लीजिए पूछो। 160 तक, ओके। আমার উপর দৃষ্টা তুমি পারমার্থিক কার্য। हमारी उपदेश सरोज माता जी म्यूट कीजिए। তোমারে হোত উপদেশে বালকা করে ওইছে কার্য। तुम्हारे उपदेशे बालक करे ऐसे कार्य। তুমি আবার উপদেষ্টা, কেননা তুমি তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা, আর সে বালক তোমাকে উপদেশ দিতে সাহস করে। তুমি আমার উপদেষ্টা মানে উইটনেস না, উপদেষ্টা क्या है? हिंदी में सलाहकार लिखा हूं। सलाहकार, ओके, वेल विशर, सलाहकार, उपदेष्टा, अनुमंता, उपदेष्टा, ओके। কেননা তুমি তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা। महाप्रभु प्रशंसा कर रहे हैं सनातन गोस्वामी को, और आपको वो छोटा बालक उपदेश देते साहस किया। ये सुनना करेंगे माता जी। प्रभु यहाँ पे लिखा है कि तुम प्रामाणिक व्यक्ति हो, कि तुम प्रामाणिक व्यक्ति हो। तो जगदानंद पंडित क्या प्रामाणिक नहीं थे? प्रामाणिक मीन्स यू आर एस्टैब्लिश्ड डिवोटी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। वो भी तो प्रभु जगदानंद पंडित भी तो महाप्रभु के संग में है, तो संघ में तो बहुत है, लेकिन ही इज मोर सीनियर सनातन गोस्वामी, यही बोलना चाह रहे हैं। कैबिनेट में नहीं थे ना, सीनियर नहीं थे। तो शास्त्रज्ञ व्यक्ति भक्त में सनातन गोस्वामी ऊंचा थे। महाप्रभु जब बोल रहे तो जरूर थे ना, साक्षात भगवान बोल रहे तो कैनॉट से रिफ्यूज इट।
এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী এখানে রহিল বদন ভরিয়া সবে বলো হরি হরি हरी हरी হরি বল, হরি বল। हरी बोल हरी बोल